Hi guys, welcome to the next video in this daily alert year practice series. First pause this video, try the set yourself and then proceed on with the rest of the solution. Now let's start reading this particular set. So this says two traders, Chetan and Michael, they were involved in the buying and selling of MCA shares over 5 trading days. At the beginning of the first day, MCA share was priced at rupees 100. So initial price कितनी है 100. While at the end of the fifth day, the price was 110, right? So this was the beginning of the first day. ठीक है. And fifth day के end में हमका 110 है. So there must have been changes on the first day also, because ये तो beginning of first day है ना, तो first day पे भी कुछ change आएगा, second day पे भी change हुआ होगा, third day पे भी change हुआ होगा, fourth day पे भी change हुआ होगा, और एक fifth day पे change होने के बाद जो final price settlement हुई वो कितने पे हुई 110 पे हुई, right? So we need 5 changes in this. Now at the end of each day, the MCA share price either went up by rupees 10 or else it came down by rupees 10. Now ये information important है कि 5 जो changes के भी हमने बात करी है, इन changes में दो ही possibilities है, either it will go up or it will go down, same कभी नहीं रहेगा, right? Now ये up and down जो होगा वो हमेशा कितने से होगा 10 रुपीज से होगा, या तो 10 रुपीज ऊपर बढ़ेगा या तो 10 रुपीज नीचे आएगा. Now, both Chetan and Michael took buying and selling decisions at the end of each trading day. The beginning price of MCA share on a given day was the same as the ending price of the previous day. ठीक है, तो जिस प्राइस पे एक दिन एंड होगा उसी प्राइस पे अगले दिन स्टार्ट होगा. It's fairly straightforward. Chetan and Michael started with the same number of shares and amount of cash. Now, ये नहीं बता रखा है इसने कि कितने शेयर से स्टार्ट कर रहा है या कितने अमाउंट से स्टार्ट कर रहा है, बट इट इज सेइंग कि सेम नंबर ऑफ शेयर से स्टार्ट करा एंड सेम अमाउंट ऑफ कैश से भी स्टार्ट किया एंड हैड एनफ ऑफ बोथ. तो मे बी वो इनिशियल अमाउंट जो इनके पास है वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी इट इज क्लियरली सेड दे हैव एनफ ऑफ बोथ, लाइक बहुत सारा पैसा अपने पास. ओके. Below are some additional facts about how Chetan and Michael traded over the 5 trading days. Now, किस तरीके से buying selling कर रहे हैं, what is this decision, वो यहाँ पे दिया हुआ है. This says each day if the price went up, price अगर ऊपर जाएगा तो Chetan sold 10 shares. So Chetan जो है sells 10 shares obviously. On the other hand, each day if the price went down, तो price अगर नीचे जाएगा he bought 10 shares. तो Chetan जो है he'll buy. तो उसका सिंपल बाइंग एंड सेलिंग का डिसीजन है, अगर प्राइस ऊपर गया तो बेच देगा, प्राइस अगर नीचे गया तो खरीद लेगा. कितना बाई एंड सेल करेगा 10 शेयर्स इन बोथ केसेस. नाउ इफ ऑन एनी डे द क्लोजिंग प्राइस वाज अबव 110, अगर 110 से ऊपर गया प्राइस, राइट, नॉट इक्वल टू 110 से ऊपर अगर गया प्राइस, देन माइकल सोल्ड 10 शेयर्स ऑफ एमसीएस. तो माइकल क्या करेगा 10 शेयर्स सेल करेगा. तो माइकल विल sell, that number is again same 10 shares ही है. while if it was below 90, तो 90 से अगर नीचे जाएगा, right, only then he will buy 10 shares. तो माइकल जो है वो buy करेगा. so these are actually the buying and selling decisions of both Chetan and Michael. now the next point is done, right? now कहाँ से स्टार्ट करें इसको. सबसे पहले ना आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो डे पे जो प्राइसेस आपके एंड होंगी, बिकॉज उनके बाद ही डिसाइड होगा ना कि कौन कहाँ पे बाई कर रहा होगा या फिर कौन कहाँ पे सेल कर रहा होगा. सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू फिगर आउट कि अगर हम इनिशियली लेट से 100 से स्टार्ट कर रहे हैं और 5 चेंजेस के बाद 110 पे पहुंच रहे हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटीज है आपकी बीच में डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एंड डे 5 पे प्राइजेस की, क्या पॉसिबिलिटीज है चेंजेस की. तो the first thing you need to realize कि ये दिया हुआ है कि either price goes up by 10 or it goes down by 10. बट 5 चेंजेस के बाद ऑड नंबर ऑफ चेंजेस हैं, 5 चेंजेस के बाद नेट आपकी प्राइस में इंक्रीमेंट कितने का हुआ है 10 का इंक्रीमेंट हुआ है. तो वी कैन से फ्रॉम हियर कि आपके टोटल जो इंक्रीमेंट्स हुए होंगे 10 वाले वो 3 हुए होंगे, वो एक ज़्यादा होगा क्योंकि बैलेंस आपको एक ऊपर शिफ्ट करना है ना इंक्रीज के साइड. सो इस 5 को आप कितने में तोड़ोगे 3 एंड 2 में तोड़ोगे. 3 आपके इंक्रीजेस होने चाहिए, मे बी से डिनोट बाई प्लस प्लस प्लस, 3 आपके इंक्रीजेस होने चाहिए
और 2 आपके क्या होने चाहिए, डिक्रीजेस होने चाहिए। तो 3 बार आपका 10 10 10 इंक्रीज करके प्लस 30 का प्राइस बढ़ेगा, और 2 बार 10 10 डिक्रीज करके 20 कम हो जाएगा, बट स्टिल आपका 10 का इंक्रीमेंट रहेगा शेयर प्राइस में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये जब हमने फिगर आउट कर लिया कि उन 5 डेज में 3 बार आपको इंक्रीजेस मिलेंगे, 2 बार डिक्रीजेस मिलेंगे, लेकिन हम ये तो नहीं कह रहे हैं ना कि वो कंसेक्यूटिव इंक्रीजेस होने चाहिए या 2 कंसेक्यूटिव डिक्रीजेस होने चाहिए। ये जो ऑर्डर है वो एक्चुअली में वेरी कर सकता है, एंड उसी के अराउंड ये प्रॉब्लम आपका क्रिएटेड है। नाउ क्या पॉसिबिलिटीज है आपकी यहाँ पे, अब आप थोड़ी पेंसी से भी जा सकते हो, मे बी जो डिक्रीजेज है आउट ऑफ 5 कितनी पॉसिबिलिटीज है, 5C2 10 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। नहीं तो आप इसको मैनुअली भी कर सकते हो इफ यू आर नॉट रियली कंफर्टेबल विद पीएनसी राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट, राइट। बट इफ समवन इज कंफर्टेबल विद पीएनसी तो ही और शी नोस कि यहाँ पे 5 में से 2 जगह पे डिक्रीजेस है, या फॉर दैट मैटर 5 में से 3 जगह इंक्रीजेस है। तो आइदर वे इट इज 5C2 और 5C3, सेम वैल्यू आएगी, 10 केसेस बनने वाले। अगर हम इसको मैनुअली बनाएं तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे किसी भी एक चीज पे फोकस कर लो, ये से लेट्स से 2 डिक्रीजेस। नाउ 2 डिक्रीजेस कहाँ हो सकता है, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ, फर्स्ट फिफ्थ, सेकेंड थर्ड, सेकेंड फोर्थ, सेकेंड फिफ्थ, थर्ड फोर्थ, थर्ड फिफ्थ एंड फोर्थ फिफ्थ। तो ये जितने मैंने अभी केसेस बोले, क्या बोला, 4 + 3 + 2 + 1 केसेस, सो अ टोटल ऑफ 4 + 3 + 2 + 1 दैट इज 10 केसेस। यही वो एक्चुअली 10 पॉसिबिलिटीज है जो आपको लेके चलनी है। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम टैबुलेट करते हैं वैल्यूज को, राइट। तो ओवरऑल हमारे पास क्या चेंजेस, किस तरीके से आप 110 पे पहुंचोगे। तो मैं ऑर्डर में ले चलूंगा, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ, फर्स्ट फिफ्थ में पहले मैं डिक्रीजेस वाले लिख दूंगा, तो बचे हुए ऑटोमेटिकली 3 जगह पे आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तो लेट स्टार्ट, 100 से आपको स्टार्ट करना है। तो पहला दूसरा डिक्रीज हुआ, तो लेट्स से 90, देन आपका डिक्रीज, सो 80, एंड उसके बाद 3 आपके इंक्रीजेस, सो 90, 100, 110। नेक्स्ट फर्स्ट एंड थर्ड इज डिक्रीज, सो 100 के बाद 90 का डिक्रीज हुआ, लेकिन फिर एक बढ़ गया, दिस इज 100, फिर एक डिक्रीज हुआ 80 का, एंड देन 90 एंड सॉरी 90 डिक्रीज हुआ, देन फिर आपका इंक्रीज हुआ, देन आपका डिक्रीज हुआ, सो दिस वाज 80 डॉट, this is 90, this is 100 and this is 110। देन फर्स्ट एंड थर्ड प्लेस पे डिक्रीजेस, तो एक बार आपका डिक्रीज करके 90 आया, फिर इंक्रीज हुआ, फिर से इंक्रीज हुआ, और फिर डिक्रीज हुआ, और फिर फाइनली आपका इंक्रीज हुआ, फर्स्ट एंड थर्ड। नाउ फर्स्ट एंड फोर्थ पे अगर आपका डिक्रीज हो रहा है, सो दिस इज 90, देन आपका लगातार 3 इंक्रीजेस मिलेंगे आपको, सो 100, 110, 120, एंड फिर डिक्रीज हो जाएगा, दैट इज 110। सो फर्स्ट प्लेस पे डिक्रीज करके आपके 4 केसेस बन गए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पे। अब हम सेकंड एंड पहले थर्ड पे डिक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे फिर आपका इंक्रीज होगा, सो दिस इज 110। अब यहाँ दोनों जगह डिक्रीज करते हैं, सो दिस इज 100, दिस इज 90, एंड बाकी पे इंक्रीजेस, सो दिस इज 100, दिस इज 110। नेक्स्ट क्या करते हैं, सेकेंड एंड फोर्थ पे करते हैं डिक्रीज, सो दिस इज 110, इंक्रीज होके ये आपका 100 हुआ, इसको आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, सो दिस इज 110, ये डिक्रीज हो गया, सो दिस इज 100, एंड फाइनली फिर से इंक्रीज हुआ, दैट इज 110। फिर आपका सेकेंड एंड फिफ्थ पे डिक्रीज करते हैं, सो ये इंक्रीज होके 110, ये डिक्रीज ही हुआ है, इसके बाद ये दोनों आपके इंक्रीजेस हो जाएंगे, तो ये 110 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, और ये फाइनली डिक्रीज हो जाएगा 110 पे। तो सेकेंड के साथ सारी पॉसिबिलिटी बना ली, अब आप थर्ड और फोर्थ, थर्ड एंड फिफ्थ उस ऑर्डर में करो, तो 110 डिक्रीज, ये वाला भी इंक्रीज 120, अभी ये दोनों डिक्रीज करना है, सो ये 120 के बाद ये 110 हो जाएगा, ये 100 फिर से डिक्रीज, और फाइनली 110। फिर सेकेंड एंड सॉरी थर्ड एंड फोर्थ कर लिया, आप थर्ड एंड फिफ्थ कर लो, सो 110, 120, इसको अभी भी 110, ये वाला अभी आपका इंक्रीज कर दो, ये 120, और फिर फाइनली ये डिक्रीज, दैट इज 110। नाउ एक ही पॉसिबिलिटी और बची है, बिकॉज टोटल ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केसेस आर डन, लास्ट पॉसिबिलिटी बस वो फोर्थ एंड फिफ्थ डे वाला आपका डिक्रीज, so this is 110, this is 120, this is again increase, so this is 130, और फाइनली फिर दो डिक्रीजेस 120 और 110 के।
So these are the 10 possibilities of the increases and decreases on the 5 days, such that you ultimately result in 110 on the end of the 5th day. Now this was the first part to this particular problem. Now on the basis of this we can actually figure out all the problems. So एक एक करके start करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, इफ चेतन सोल्ड 10 शेयर्स ऑफ एमसीएस ऑन 3 कंसेक्यूटिव डेज. तो चेतन सेल कब करता है? जब आपकी प्राइस क्या जाती है, ऊपर चली जाती है. जब भी प्राइस आपकी इंक्रीज होगी तो चेतन विल सेल. 3 कंसेक्यूटिव आपको डेज ऐसे चाहिए जहां पे प्राइस आपकी क्या हुई होगी, इंक्रीज होगी, तभी 3 कंसेक्यूटिव डेज पे चेतन सेल करेगा. सो 3 टाइम्स वी नीड कंसेक्यूटिव इंक्रीजेस. ऑल्सो माइकल सोल्ड 10 शेयर्स ओनली वंस ड्यूरिंग द 5 डेज. राइट नाउ माइकल कब सेल करता है? माइकल सेल करता है जब प्राइस आपकी 110 से ऊपर जाती है. ऑल्सो वेरी स्पेसिफिकली उसको एक ही बार सेल करना है. ही हैज टू सेल ओनली वंस ड्यूरिंग द 5 डेज. मतलब उन 5 चेंजेस में आपका एक ही बार ऐसा होना चाहिए जब आपकी प्राइस 110 से ऊपर चली जाएगी. तो 110 से ऊपर मतलब 120 या 130 कुछ ऐसा दिखना चाहिए. तो 120 को आप फिगर आउट कर लो. एग्जैक्टली एक बार 120 इसमें गया है, एग्जैक्टली एक बार 120 इसमें गया है, और 9th एंड 10 दोनों में मल्टीपल टाइम्स 110 को क्रॉस किया है. 120 मल्टीपल टाइम्स किया है. सो इन्हीं दोनों केसेस में बस आपको देखना है किस पर्टिकुलर केस में आपका 3 कंसेक्यूटिव इंक्रीजेस है, बिकॉज वो पहला कंडीशन भी सेटिस्फाई करना है. राइट. तो 3 कंसेक्यूटिव इंक्रीज अगर देखोगे तो 100 के बाद ये डिक्रीज हुआ, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज. सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. एक बार सेकंड वाला केस चेक कर लेते हैं. तो इसमें नोटिस करोगे प्राइस आपकी इंक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई, लेकिन फिर डिक्रीज हो गई, एंड डिक्रीज फिर इंक्रीज. तो दिस केस डजंट फिट दैट 3 कंसेक्यूटिव इंक्रीजेस वाला पार्ट. तो दैट मीन्स यहाँ फोर्थ वाला ही आपका केस लेना है. तो पूछा क्या है फोर्थ वाले से, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ डे 3. तो डे 3 के एंड में प्राइस कितनी थी? 110. राइट नाउ 110 इज द फाइनल आंसर टू दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. नाउ लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम. So this says if Chetan ended up with rupees 1300 more cash than Michael at the end of day 5, what was the price of MCS share at the end of day 4? Now इसको कैसे हैंडल कर रहे हैं? इसमें सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, चेतन ended up with rupees 1300 more cash. कैश कैसे जनरेट होगा? ज़्यादा कैश कैसे निकलेगा उसके पास? बिकॉज ही इज गोइंग टू सेल सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स. बिकॉज वो सेल करेगा तभी उसका कैश जनरेट होगा. तो ये बोलता है कि चेतन एंडेड अप विथ रुपीज 1300 मोर कैश देन माइकल एट द एंड ऑफ डे 5. नाउ कितना एग्जैक्टली आपका चेतन का कैश जनरेट हुआ ये अभी आपको नहीं पता है. राइट 1300 का डिफरेंस आना चाहिए इनके कैश में. राइट सेल करने के बाद, नेट बाई सेल करने के बाद जो कैश एक्स्ट्रा बचेगा आपके पास, वो चेतन के पास आपका माइकल के रिस्पेक्ट में 1300 ज़्यादा आना चाहिए. नाउ सबसे पहले द फर्स्ट थिंग टू नोटिस इन दिस पर्टिकुलर केसेस, चेतन के लिए अगर आप नोटिस करो, चेतन का तो फिर फिक्स है ना. चेतन का तो प्राइस पे डिपेंडेंट नहीं है. वो सिर्फ ये देखता है कि प्राइस अगर इंक्रीज करेगी तो हम क्या करेंगे, सेल कर देंगे. प्राइस अगर डिक्रीज करेगी तो हम क्या करेंगे, उतना ही नंबर ऑफ शेयर्स एट 10 फिर हम बाई कर लेंगे. तो आप किसी भी केस को अगर स्टार्ट करो सोचना, तो ही ऑलवेज हैव व्हाट से 3 सेल्स एंड 2 बाइस. इस 3 सेल्स और 2 बाइस में अगर आप किसी भी केस में नेट जो कैश जनरेटेड है अगर आप वो कैलकुलेट करो, सो विल फाइंड एन इंटरेस्टिंग थिंग. जैसे कि मान लो फर्स्ट केस है. फर्स्ट केस में उसमें प्राइस जब 90 होगी तब भी उसने क्या करा होगा, सेल करा होगा. जब 90 सेल करेगा तो वो 10 शेयर सेल करता है. राइट सॉरी 90 यहाँ पे हुआ तो प्राइस उसने बाई करा. जब वो 90 प्राइस को मिलती है तो वो 10 शेयर्स क्या करता है, बाई करता है. तो जब बाई करेगा तो 90 इंटू 10 900 रुपये, 900 रुपीज़ कैश कम हो जाएगा, है ना. बिकॉज शेयर बाई कर रहे हैं उसको तो कैश वो लगाएगा ना, तो उसके पास से कैश कम होगा. तो जब भी आपका प्राइस जैसे 90 हुआ तो यहाँ पे उसके पास कैश कम हो जाएगा. तो जैसे मैं बोल सकता हूँ कि -900 हो जाएगा उसका कैश का बैलेंस. फिर प्राइस फिर से डिक्रीज हुई 80 पे, तो फिर से उसका कैश कम हो जाएगा 800. 80 इंटू 10 800 रुपये का खरीद लेगा वो. देन प्राइस इंक्रीज हुई है. राइट जब प्राइस इंक्रीज हुई है तो वापस से वो सेल करेगा. इस बार जब सेल करेगा तो 900 कैश उसके पास आएगा. देन प्राइस इंक्रीज हुई, देन अगेन उसके पास
100 इंटू 10 दैट इज 1000 कैश मिलेगा। एंड फाइनली जब 110 प्राइस गई फिर से इंक्रीज हुई तो अगेन उसको 1100 उसका कैश एक्स्ट्रा जनरेट होगा। तो अगर आप टोटल चेंजेस देखो अपने इस कैश के बैलेंस पे तो कितना बनेगा, 900 गेट्स कैंसल्ड आउट और 1000 माइनस 800 इज 200, 200 प्लस 1100 इज 1300 ही एक्चुअली में आया जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है। नाउ आप एक और के लिए चेक कर सकते हो, कोई भी रैंडम अगर आप केस उठा के देखो, फॉर एग्जांपल मान लो आप 6 केस को चेक करो, 6 केस में नोटिस करो इंक्रीज हुआ तो सेल होगा तो 1100 कैश आएगा, फिर प्राइस डिक्रीज हुई तो माइनस 1000 आएगा, फिर प्राइस इंक्रीज हुई तो प्लस 1100 आएगा, फिर प्राइस आपकी डिक्रीज हुई तो माइनस 1000 आएगा, और फिर प्राइस इंक्रीज हुई तो फिर से प्लस 1100 कैश आएगा। तो अगर आप नोटिस करो फिर से 1100 3300 माइनस 2000 दैट इज अगेन गोइंग टू गिव अस 1300। तो हम इसमें ये नोटिस कर रहे हैं कि चेतन का एक्चुअली में 5 डेज के एंड में 1300 ही कैश जनरेट होगा, राइट। उसके स्टार्टिंग बैलेंस के कंपेयर करेंगे 1300 उसके पास कैश ज्यादा आएगा। नाउ 1300 उसके पास टोटल कैश आएगा और ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 1300 ही ज्यादा होना चाहिए माइकल के करस्पॉन्डिंग। सो कैन वी से फ्रॉम दिस कि माइकल का टोटल कैश जनरेटेड वुड बी इक्वल टू 0, नेट कैश का उसका बैलेंस जो होना चाहिए 5 डेज के एंड में वो 0 होना चाहिए, क्योंकि चेतन का 1300 पे फिक्स है, वो चेंज नहीं होने वाला है। 5 दिन के बाद चेतन के पास 1300 कैश ज्यादा आएगा, तो 1300 का अगर डिफरेंस बनाना है दोनों के बीच में कैश का जनरेशन का, माइकल का हैज टू हैव अ 0 कैश बैलेंस, राइट। नाउ बिकॉज माइकल का ओवरऑल जो चेंज हुआ कैश के बैलेंस में 0 का हुआ, हेंस वी आर सेइंग ही हैज नाइदर बॉट नॉट सोल्ड, राइट। नेट उसका 0 हो जा रहा है तो ना ही बाई कर रहा है ना ही सेल कर रहा है। या फिर ऐसा भी आप बोल सकते हो कि जितनी बार वो बाई करेगा उतनी बार ही वो सेल भी कर देगा, दोनों पॉसिबिलिटी है ना। अगर मैं जैसे मान लो पहला वाला सिनेरियो चेक करता हूं कि ना ही उसने बाई करा ना ही उसने सेल करा, राइट, इसमें भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो अगर आप नोटिस करो ना ही बाई करेगा ना ही सेल करेगा, दैट मीन्स ना ही प्राइस आपकी कभी 110 से ऊपर गई ना ही प्राइस आपकी कभी 90 से नीचे आई, राइट। इस पर्टिकुलर केस में हम फिगर आउट करना चाहेंगे। तो अगर आप नोटिस करो वो कौन से केसेस जब ना ही प्राइस 110 से ऊपर जा रही है ना ही प्राइस 90 से नीचे आ रही है, तो कौन से केसेस, फर्स्ट केस नहीं चलेगा, सेकंड केस कुड बी ओके फॉर अस, थर्ड केस यस, यहाँ पे नहीं लेंगे हम क्योंकि प्राइस 110 को क्रॉस कर गई, देन ये वाला केस भी चलेगा अपने को, ये वाला केस भी चलेगा, ये वाला केस नहीं चलेगा बिकॉज में 120 है, इसमें 120 है, इसमें 120 है, इसमें 120 है। सो इन्हीं हम 4 केसेस की बात कर रहे हैं। अगर इन चारों केसेस में आप नोटिस करो जो आपको पूछ रहा है व्हाट वाज द प्राइस ऑफ एमसीए शेयर एट द एंड ऑफ डे 4, तो डे 4 के एंड में अगर आप प्राइसेस देखो तो चारों ही केस में आपका 100 100 100 एंड 100 है, राइट। दैट मीन्स आपका इन एनी केस क्या होने वाला है आपका 100 का, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ एमसीए शेयर एट द एंड ऑफ डे 4 दैट इज 100, राइट। नाउ अगर आप यहाँ पे दूसरी पॉसिबिलिटी बोलते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी एज इन कि इक्वल नंबर ऑफ डेज पे बाइंग एंड सेलिंग भी तो हो सकती थी, तब भी तो नेट आपका जो माइकल का बैलेंस है, राइट, माइकल का कैश का जो बैलेंस है तब भी 0 रहता, एक दिन बाई कर देता एक दिन में भी सेल कर देता, राइट। लेकिन वो हो नहीं पाएगा, राइट। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाई एंड सेल प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ सेम प्राइसेस पे नहीं हो रही है ना। अगर आप नोटिस करोगे तो बाई एंड सेल सेम प्राइस पे नहीं हो रही है, बाई में भी 100 पे हुआ सेल 110 पे हुआ, या माइकल के केस में अगर आप स्पेसिफिकली बात करोगे तो यार बाई उसका 90 पे होता है, सेल तो लेकिन 110 पे होता है ना, तो नेट तो हमेशा प्राइस का क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। इसीलिए कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ पहली ही पॉसिबिलिटी बचेगी, दैट इज कि क्या करना चाहिए उसको, ना ही बाई करना चाहिए ना ही सेल करना चाहिए। आई होप द क्लियर पार्ट राइजेस फ्रॉम दिस, राइट, कि उसको ना ही बाई करना है ना ही उसको सेल करना है, कोई दूसरा पॉसिबल केस नहीं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड प्रॉब्लम। इफ माइकल एंडेड अप विद 20 more shares than Chetan at the end of day 5, what was the price of the share at the end of day 3? नाउ सबसे पहले इसमें आपको नोटिस करना पड़ेगा चेतन का क्या केस है। चेतन का तो फिक्स्ड है,
तीन बार आपका वो क्या करेगा, तीन बार आपकी प्राइसेस क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, दो बार डिक्रीज हुई है। बिकॉज तीन बार इंक्रीज हुई है, दैट मीन्स वो तीन बार क्या करेगा, सेल करेगा। नहीं, तीन बार वो 10 10 10 सेल करेगा और दो ही बार वो 10 और 10 बाई करेगा। तो मैं नेट में बोल सकता हूँ कि चेतन अगर इनिशियली एक शेयर से स्टार्ट किया होगा तो बाई द एंड ऑफ डे 5 उसके पास 10 लेस शेयर्स होंगे। तभी आपका ओवरऑल तीन पॉजिटिव इंक्रीज हुए थे प्राइस में, तो तीन बार उसने 10 10 10 सेल किया होगा और दो बार क्या कर दिया होगा, उसने डिक्रीज कर दिया होगा प्राइस। तो उसने क्या करा होगा, नेट बाई करा होगा। तो तीन बार सेल करा, दो बार बाई करा, तो नेट आपका 10 शेयर्स का डिफरेंस आएगा। नाउ हम ये बोल रहे हैं कि दोनों ने नंबर ऑफ शेयर से तो सेम से स्टार्ट किया था, क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों का इनिशियल नंबर ऑफ शेयर्स बराबर है। चेतन का फाइनली एक्स माइनस 10 शेयर्स है, 10 कम है। और फाइनली क्वेश्चन में यहाँ पे ये बोल रहा है कि इफ माइकल एंडेड अप विद 20 मोर शेयर्स देन चेतन, तो चेतन के रिस्पेक्ट में इसका 20 ज्यादा आना है, तो कैन वी से कि इसका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स विद एक्स प्लस 10 होना चाहिए। दैट मीन्स माइकल जो है एक शेयर से स्टार्ट कर रहा है, एक्स प्लस 10 शेयर्स पे पहुंच रहा है। दैट मीन्स उसका नेट में 10 शेयर्स बढ़ रहा है इनिशियल के रिस्पेक्ट में। शेयर्स उसका नेट में 10 से कब बढ़ेगा, जब वो क्या करेगा, बाई करेगा। दैट मीन्स मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि उसका नेट क्या होना चाहिए, 10 का इंक्रीमेंट होना के लिए नंबर ऑफ शेयर्स का, वो क्या करे, एक बार आपका बाई करे, राइट। एक बार आपका वो जब बाई करेगा तो आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। दिस इज वन पॉसिबिलिटी, एक बाई होना चाहिए, जीरो सेल होना चाहिए। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि नेट वो हो सकता है दो बार बाई करे, दो बार बाई करे और एक बार क्या कर दे, सेल कर दे। इसके बाद और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज टोटली चेंजेस आपके क्या होने वाले हैं, 5। तो उसमें वो आपको केस मिलेगा नहीं, मे बी आपको ये भी ना मिले, इसको चेक करना पड़ेगा। इसके बाद आपका वो केस बनता कि अगर हम यहाँ पे बोलें कि आपका नेट 3 का बाई हुआ और 2 का आपका सेल हुआ, बट ऐसा आपको पॉसिबल यहाँ पे कोई भी केस मिलेगा नहीं, ये 3 बाई और 2 सेल का, राइट। अब हम एक एक करके अगर चेक करें तो सिंपल आपको ध्यान क्या रखना है कि माइकल जो है वो बाई कब करता है, बाई कब करता है, जब प्राइस आपकी 90 से नीचे जाए। तो एक बार आपका एग्जैक्टली 90 से नीचे जाए और सेल ना करे, राइट, तो 110 से ऊपर ना जाए। तो एक बार बाई कर लेंगे, 90 से नीचे आपको चेक करना है, तो 90 से नीचे आपका दिस केस इज फाइन फॉर नाउ। एक बार 80 है, फिर इसमें नहीं है, 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 तो एक ही आपका एक्चुअली में वो केस आ रहा है जब प्राइस आपका 90 से नीचे जाएगा। तो और कोई आपको केस चेक करने की जरूरत भी नहीं है, देर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी जब वो एक्चुअली बाई कर सकता है, एंड दैट इज दिस फर्स्ट केस इटसेल्फ। तो ना ही हमें इसको चेक करने की जरूरत है, ना ही हमें इसको चेक करने की जरूरत है। नाउ पूछा क्या था, व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ डे 3। तो डे 3 के एंड में आपका प्राइस क्या है, 90 रुपीज। So 90 is the answer to this particular problem. Now, the final problem in this particular set, this says what could have been the maximum possible increase in combined cash balance of Chetan and Michael at the end of 5th day. Now, total cash आपका maximize करना है दोनों का मिला के इस बार। Now, from that second problem, we know कि चेतन का अगर आप कोई सा भी केस ले लो, चेतन का irrespective of the case, टोटल कैश बैलेंस कितना बढ़ने वाला है, दिस 1300 रुपीज। तो 1300 तो फिक्स है चेतन का, वी ओनली हैव टू टेक केयर फॉर दिस माइकल नाउ। तो माइकल का हम कैश बैलेंस बढ़ाना चाहेंगे। माइकल का कैश बैलेंस बढ़ेगा कब, वो जब वो ज़्यादा टाइम्स बेचेगा। ज़्यादा टाइम्स वो सेल कब करेगा, जब प्राइस 110 से ऊपर जाए। प्राइस 110 से ऊपर जिस पर्टिकुलर केस में आपको मैक्सिमम टाइम्स दिख रहा है, बस उसी केस में आप देख लो कि कितनी बार वो सेल करेगा, किस किस प्राइस पे, वो आपको दे देगा टोटल कैश बैलेंस ऑफ माइकल एट द एंड ऑफ 5th डे। तो सबसे ज़्यादा टाइम्स आपका 110 से ऊपर जाते हुए आपको ये लास्ट वाला केस दिखेगा। ये पर्टिकुलर लास्ट केस में अगर आप नोटिस करोगे, प्राइस 110 से ऊपर 120, 130 और 120 ये तीनों दिन गई है। सेल वो एक भी दिन नहीं, सॉरी बाई वो एक भी दिन नहीं करेगा क्योंकि 90 से नीचे गया ही नहीं। सो बस आप यहाँ पे टोटल कैश जनरेटेड देख सकते हो। अगर एक एक शेयर वो सेल करता तीनों दिन तो 120 प्लस 130 प्लस 120 370 आता, बिकॉज उसने 10 बेचा है, तो टोटल कैश जनरेटेड वुड बी 3700। सो माइकल का टोटल कैश बैलेंस इज 3700, चेतन का इज 1300। सो टोटल इनका एडिशन वुड बी द मैक्सिमम पॉसिबल इंक्रीज in the combined cash balance, and that would be 37 plus 13, that is 5000.
So 5000 is the answer to this particular problem. Right? I hope you have understood this set. If you have any doubts, you can put that in the comments.